Good morning, all of you. Today's topic is pollination. This is the next topic of sexual reproduction in flowering plant. Now, what is pollination? Pollination, it means the transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the receptive stigma of the pistil is called pollination. In other words, we can say that the transfer of pollen grains anther to stigma. After maturation of flower जब mature हो जाता है, then male gametophyte and female gametophyte developed हो जाते हैं पूरी तरह से. तब एंथर की 3 layers एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स ड्राई होकर रप्चर हो जाती हैं, टेपेटम ऑल्सो, और पोलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाते हैं. और ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक, जो दैट इज़ द फीमेल पार्ट, ओके, पिस्टिल का जो अपर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, वहाँ पर जाके स्टिक हो जाते हैं फॉर द पॉलिनेशन. ओके, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी प्रोसेस बिफोर फर्टिलाइजेशन. Next is type of pollination. It is two types, self-pollination and cross-pollination. First of all, we will see self-pollination and autogamy. It is a kind of pollination achieved within the same flower. For example, wheat, rice, pea, etc. Now, plants show following adaptation for autogamy. Autogamy में भी हम different flowers के examples देखेंगे. First of all, clistogamous flower. Okay, these are closed flower. ये clistogamous it means ऐसे flowers जिनके petals पूरी तरह से closed होते हैं, open नहीं होते हैं. It means their anther and stigma lie close to each other. For example, viola, mirabilis, camelina and oxalis. These are clistogamous flowers. Okay, so these flowers produce assured seeds set in the absence of pollination. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में चूँकि पेटल्स पूरी तरह से क्लोज्ड होते हैं और उन पेटल्स के बीच में सेंटर में फीमेल पार्ट इट मीन्स गाइनोशियम और एंड्रोशियम सिचुएटेड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही इनका पॉलिनेशन हो जाता है विदाउट एनी एजेंट्स, किसी एजेंट्स की नीड नहीं होती है. नाउ सेकंड इज़ कैज़्मोगैमस फ्लावर. कैज़्मोगैमस फ्लावर इट मीन्स ओपन फ्लावर्स. ओके, मतलब जो पेटल्स हैं वो ओपन रहेंगे. दीज आर ओपन फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन. इन दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स कैसे रहेंगे? ओपन रहेंगे. The anther and stigma of these flowers are brought together by growth and bending or folding. In these flowers, pollen from anther flower can land on the stigma as well. Example, Catharanthus and Mirabilis. Now next is deuteronogamy. It is a kind of self-pollination where the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant but different species. ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है जिसमें एक ही प्लांट में डिफरेंट ब्रांचेस पर फ्लावर्स ग्रो करेंगे और एक फ्लावर का एंथर दूसरा फ्लावर जो कि दूसरी ब्रांच पर ग्रो हो रहा है वहाँ उसकी स्टिग्मा पर अटैच होगा. सो दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर इन कुकुरबिटा स्पीशीज़. ओके, सो इट इज़ अ फंक्शनली अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. अगर हम देखें तो ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, बट जेनेटिकली इट इज़ अ सिमिलर टू ऑटोगैमी. Now our next topic is advantages and disadvantages of self-pollination. First of all, we will see advantages of self-pollination. Now flowers do not have to depend
on external agencies like winds, water and animals. सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर्स अपने पॉलिनेशन के लिए किसी बायोटिक एबायोटिक एजेंट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है ना. सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोमेटिकली पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है. नाउ प्योर लाइन प्रोजेनी कैन बी ऑब्टेन्ड. प्योर लाइन प्रोजेनी इट मीन्स नो वेरिएशन ऑकर. ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज़ रहती है हमेशा. पेरेंट्स सेल से जो भी न्यू यंग वंस डेवलप्ड होते हैं, न्यू फ्लावर्स आते हैं, उनमें प्योर लाइन प्रोजेनी इट मीन्स आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. देयर आर नो चांस ऑफ obtaining unwanted characters. It provides ensurety of fertilization. Continuity of better characters can be maintained through self-pollination. In the self-pollination process, self-pollinating flowers do not waste their energies in the production of abundant pollens, colorful flowers, scent, odor, etc. जनरली इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फ्लावर्स के पेटल्स ब्राइट कलर्स के होते हैं, नेक्टर सिक्रीशन ज़्यादा होता है एज अ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. हमें जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करना होता है बिकॉज दे आर एजेंट्स जो कि उसकी हेल्प करेंगे पॉलिनेशन की प्रोसेस में. ओके, बट इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बायोटिक जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी नीड हो. सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो सेल्फ पॉलिनेटिंग जो फ्लावर्स होते हैं डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ pollen grains, extra number of pollen grains, colorful flowers, petals, scent, odor, etc. Okay, now next we will see disadvantages of self pollination. जहाँ पर advantages होते हैं वहाँ पर कुछ disadvantages भी हमें देखने को मिलते हैं, such as new varieties are not produced. ओके, इन द केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होती है. जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स एज इट इज़ आइडेंटिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होते रहते हैं. ओके, नाउ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन में रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. ओके, तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस है सेल्फ पॉलिनेशन के, जहाँ हमें कोई भी न्यू वैरायटी या कोई न्यू चेंजेस वेरिएशन अपीयर नहीं होते हैं स्पीशीज़ में. अगर कोई डिसीज्ड स्पीशीज़ है या रेसेसिव कैरेक्टर शो करने वाली स्पीशीज़ है तो डेफिनेटली जनरेशन टू जनरेशन उसके रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर होते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ जीनोगैमी और एलोगेमी, दैट इज़ द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. In the cross pollination involves the transfer of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. Okay, this is only type of pollination which brings genetically different. Okay, in this type of cross pollination variation are shown. For examples, papaya, maize. Next, advantages of cross pollination. In cross pollination variation are present. Okay, these type of flowers show different type of variation. Now hybrid seeds are formed through cross pollination process. In the cross pollination involves two genetically different plants, thus offspring will be new types with variation character with different character. Next, two genetically different plants are involved in cross pollination, so it increases fertility. Recombination is the result of cross pollination which increase heterosis. It means increase in vigor.
ओके। क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई एडवांटेज कैरेक्टर है तो वो है वेरिएशन आना, नई स्पीशीज़, नई वैरायटी, नया जीन पूल आना। ओके, जिसकी वजह से हमें नई नई स्पीशीज़ मिलती है, न्यू हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, नई वैरायटीज़ के फ्लावर्स, हर तरीके का चेंज अपीयर होता है क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में। बट जहाँ एडवांटेजेस हैं वहीं डिसएडवांटेजेस भी हैं इस पॉलिनेशन के। लुक, क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा डिपेंडेंट होता है बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स पर। ओके, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं वो या तो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ओके, वाटर है, विंड है, तो ये इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक बार में पॉलिनेशन करेक्ट फ्लावर की स्टिग्मा पर स्टिक हो जाए विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। कई बार जो एजेंट्स हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो दूसरे फ्लावर्स पर चली जाती है या उनके अपेंडेजेस से जो पॉलन ग्रेन स्टिक हुए हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ख़राब बहुत होते हैं, और चांस भी रेयर चांस में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। यही रीज़न है कि क्रॉस पॉलिनेशन शो करने वाले फ्लावर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट ज़्यादा होते हैं, नेक्टर सिक्रीशन ज़्यादा होता है नेक्टर ग्लैंड से। ऐसा क्यों? बिकॉज़ इन्हें अट्रैक्टिव होना पड़ता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने इस टॉपिक में पॉलिनेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशंस को देखा, स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप के एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे।